and social reformer and political leader. Dr. B.R. Ambedkar was popularly known as Baba Saheb Ambedkar, means respected father. He was one of the architects of the Indian Constitution. He was the first law minister of the country in the year 1947. He was awarded the prestigious Bharat Ratna Award in 1990. The salutation Jai Bhim used by followers honors him. So today, Purvesh Madankar from class 7 is going to explain Dr. Baba Saheb Ambedkar. Purvesh. Good morning all of you. I am Dr. Baba Saheb Ambedkar. Good morning all of you. I am Dr. Baba Saheb Ambedkar. I was born on 13th April 1891. I wrote the whole constitution with my team in 2 years, 11 months and 17 days. People also call me father of Indian Constitution. I also fought against the untouchabilities. I was the first law and justice minister of India. Thank you and have a nice day. To all respected principals, sir, ma'am, teachers, and my dear friends. Today I have been honored to tell a few lines about the father of our constitution, Dr. Bhimrao Ambedkar. Firstly, I would like to thank my teacher for giving me this opportunity of Dr. Baba Saheb Ambedkar Jayanti Bhashan. Dr. Bhimrao Ambedkar, popularly known as Baba Saheb Ambedkar, was born on 14 April 1891, and every year 14 April is celebrated as Ambedkar Jayanti. Dr. Ambedkar was a man of rich personality. He was the first Dalit to complete his education. He had done a PhD. He was a master of 64 subjects and could speak 11 languages. Professionally, he had done a lot of subjects and a lot of work for our society. He was the first one to start movement against the caste system of India and for temple entry of everyone. He had changed his religion from Hindu to Buddhism along with his followers, as Hindu had preferred untouchability. He was the first law minister of independent India. He gave a beautiful lesson of equality and fraternity throughout the Indian Constitution, which he had drafted. Throughout his life, he worked for the backward class people of India. He was the leader of the Dalit and always fought for equality rights for them. He was awarded Bharat Ratna in April 1990 for his contribution toward Indian society. He is a great inspiration to all the youth and the lawyer of India. Thank you and Jai Hind. 132nd birth anniversary of Dr. Bhimrao Ambedkar. Okay, he got it many पुरस्कार, उनको बहुत सारे पुरस्कार जैसे कि पहला पुरस्कार उनको मिला था बोधिसत्व 1956। बोधिसत्व उन्हें तब मिला जब उन्होंने धर्म परिवर्तन किया। इसकी स्टोरी में आपको बात बताते काड़ाराम होंगे। देन भारत रत्न इन 1990 पहले कोलंबियन अहेड ऑफ द ईयर ऑफ देयर, पहले कोलंबियन ऑफ देयर टाइम उनको मिला था 2004।
ये अवार्ड उन्हें कोलंबिया से मिला था, ना कि इंडिया से। द ग्रेटेस्ट इंडियन 2012 में उनको द ग्रेटेस्ट इंडियन का अवार्ड मिला था। भारत में सबसे पहला स्मारक बनाने वाला अगर कोई था तो वो मराठा, इसका नाम पता है, मराठा बाल चौहान थे। उनका नाम क्या था? मराठा बाल चौहान। देन रामजी मालोजी सपकाळ वाज हिज फादर। उनके फादर का नाम था मालोजी, रामजी मालोजी सपकाळ। अब जब भीमराव रामजी आंबेडकर 5 साल के थे तब उनकी मम्मी की डेथ हो गई, सिर्फ 5 साल का बच्चा। उनकी डेथ होने के बाद जो उनकी बुआ थी मीराबाई, उन्होंने उनके फादर को इंसिस्ट किया कि भीमराव क्या है, छोटे हैं, और छोटे होने की वजह से उनको माँ का प्यार मिलना चाहिए। अब माँ का प्यार मिलने के लिए उन्हें दूसरी शादी का पुनर्विवाह करने के लिए उन्हें प्रेरित किया गया। फिर राम जी ने दूसरी शादी की जीजाबाई से। अब राम जी बड़े हो गए, 5th में चले गए। जब वो 5th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे थे तब उनकी शादी रमाबाई से, 5th स्टैंडर्ड में, तब उनकी शादी किससे हुई? रमाबाई से। भीमराव जी के 5 बच्चे थे। 5 बच्चों में से सिर्फ एक ही बचा, वो था यशवंत। अब 5 बच्चों का नाम क्या था? यशवंत, रमेश, गंगाधर, राजरत्न और एक बेटी थी जिसका नाम था इंदु। राजरत्न जब बहुत ही ज़्यादा छोटा था, तो एकदम बेबी था, तब पापा सबको बाहर जाना था। उस टाइम उनके बेटे की तबीयत इतनी खराब थी कि उनके पास पैसे भी नहीं थे। तो रमाबाई ने बोला कि नहीं, आप पहले अपना एजुकेशन कंप्लीट करो, और एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद अगर मेरा बेटा जाता भी है, हज़ारों बच्चे ऐसे, लाखों बच्चे ऐसे हैं कि जिनको आपकी ज़रूरत है। तो इसीलिए पापा साहब अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के लिए गए और अपने बच्चों की आमदनी की। इसमें से एक ही बच्चा बचा था, यशवंत। वे उनके जीवन में 3 गुरु थे। गुरु 3 थे और 3 देवता थे। हमारे पास 3 देवता है, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा, करेक्ट। पर उनके पास 3 गुरु थे। हमारे भी गुरु है। वैसे तो वो कबीरपंथी थे, महाराष्ट्र से बिलोंग करते थे, स्पेशली वो आडमवे, आंबावड़े का जो उनका नाम था रत्नागिरी जिले में, तो वहाँ पे उनका आडमवे करके एक गांव है, वहाँ से भी बिलोंग करते थे। बट उनका जन्म जो हुआ था वो महू में हुआ था, मध्य प्रदेश में, छावनी में, ठीक है। तो उनके जीवन के जो 3 गुरु थे, वो पहले थे संत कबीर। कबीर को पूरी फैमिली बिलोंग करती थी। सेकेंड गुरु थे उनके तथागत गौतम बुद्ध, और तीसरे गुरु थे उनके महात्मा ज्योतिबा फुले। ये 3 गुरु उनके जीवन में बहुत अहम हैं। और उनकी जो 3 देवताएं थी, उपास्य बोला जाता है, ये वर्ड आपके लिए नया होगा। उपास्य मतलब क्या होता है? देवता। उनके जीवन के 3 देवता थे जिनका नाम था ज्ञान, स्वाभिमान और ज्ञान हो गया, स्वाभिमान हो गया, और क्या हो सकता है? शील। ज्ञान मतलब नॉलेज। आपके पास जितना ज्ञान है उतना आप एक्वायर्ड करो, जहाँ से मिल सकते हैं उतना आप नॉलेज एक्वायर्ड करो, क्योंकि जितनी आपका नॉलेज रहेगा उतना अच्छे से आप जीवन व्यतीत कर सकते हो। सेकेंड, स्वाभिमान। हर इंसान में स्वाभिमान होना बहुत ज़रूरी होता है। स्वाभिमान जिसे हम एटीट्यूड बोलते हैं, पॉजिटिव एटीट्यूड एंड निगेटिव एटीट्यूड। ऑलवेज कैरी योर पॉजिटिव एटीट्यूड। आपका पॉजिटिव एटीट्यूड ही आपको जीवन में सही दिशा दिखाता है। अगर आप गलत नहीं हो तो अपने मुद्दे पे ठाम रहना, ये है स्वाभिमान, है ना। शील मतलब क्या होता है? शीलवान, शिष्टाचार, चोरी नहीं करना, बुरा नहीं बोलना, उद्धट नहीं बोलना, किसी को भला बुरा नहीं कहना, है ना, या फिर कुछ अलग तरीके के जो व्यसन होते हैं वो नहीं करना, इसे बोलते हैं शील। मतलब शील का पालन, शीलवान बनना। ये थे 3
देवता ऑफ डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर। 3 गुरु कौन से थे? तथागत गौतम बुद्ध, संत कबीर और महात्मा ज्योतिबा फुले। और 3 देवताएं कौन से थी? शिव। ये 3 देवताएं थे। इसमें जो अब मैं आपके क्लास में एंडिंग में ये बताऊंगी कि उन्होंने धर्म परिवर्तन कैसे किया। वो तो हिंदू ही थे ना, बट हिंदू दलित थे। आपने हिस्ट्री में पढ़ा है कि यहाँ पे कास्ट सिस्टम थी, वर्ण व्यवस्था जो थी। तो वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्रास। जो हिंदू दलित थे वो पूरे शूद्रास थे। और शूद्रास कौन थे ये आपको पढ़ा है। तो जो शूद्रास थे, हिंदू दलित थे, उनको मंदिर में आने की बिल्कुल भी अनुमति नहीं थी। इसका विरोध किया बाबा साहब अम्बेडकर ने। ये स्टार्ट हुआ 1930 इन द ईयर ऑफ 1930। सत्याग्रह हुआ। सत्याग्रह में स्टार्टिंग होती कौन कौन कहाँ टुकड़ी बनाई गई कि लोगों की। टुकड़ी मतलब क्या? ग्रुप। ठीक है, ग्रुप्स बनाए गए। 4 दरवाजे थे मंदिर को, काड़ाराम मंदिर नासिक में 4 दरवाजे हैं। तो चारों दरवाजे पे पुलिस के साथ पूरा पहरा बना हुआ था और पुलिस वालों ने कड़ी बना के रखी थी ताकि कोई भी दलित मंदिर के अंदर एंटर ना कर सके। तो एंटर ना कर सके इसमें साथ ही ब्राह्मण भी थे, उच्च वर्गीय भी थे, बट उच्च वर्गीय की संख्या कम थी और दलित हिंदुओं की संख्या ज़्यादा थी। 50,000 दलित हिंदू बाबा साहब के साथ में गए थे, बट उन्होंने लाठीचार्ज भी किया। उच्च वर्णीय हिंदुओं ने, पुलिस ने भी लाठीचार्ज किया, पत्थर उठा के मारे। इतनी सारी जनसंख्या होने के बाद भी दलित हिंदुओं ने किसी को मारा नहीं, ना किसी को पत्थर मारा, ना किसी को लाठीचार्ज किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि बाबा साहब का कहना था कि अगर हमें सत्याग्रह करना है, काड़ाराम मंदिर में अगर हमें प्रवेश दिलाना है, तो हमें अहिंसा से सत्याग्रह करना है, हिंसा से नहीं। अगर हम भी हिंसा करेंगे तो उनमें और हमें कोई भी अंतर नहीं बचेगा। इसलिए उन्होंने लाठियाँ गई, पत्थर खाए और इतना सब होने के बाद भी उनको एटलीस्ट 3 मार्च 1936 को काड़ाराम मंदिर प्रवेश हुआ। ये होने के बाद उन्होंने ये कहा कि अगर हिंदू भगवान अगर लोगों में भेद करते हैं तो हम ऐसे भगवान के पास भी क्यों जाए जो लोगों में भेदभाव करते हैं। तो इसीलिए उन्होंने धर्म परिवर्तन किया। नागपुर में दीक्षा भूमि में, दीक्षा भूमि क्यों चूज की? क्योंकि ये सेंटर में आता है और ये जो एरिया है नागपुर का प्रदेश, यहाँ पर सबसे ज़्यादा SC, ST, NT ये लोगों की कम्युनिटी ज़्यादा है मोस्टली, और कोई भी यहाँ पे इजीली आ सकता है। और इजीली आने की वजह से किसी भी देश के कोने से इजीली आ सकता है, इसीलिए बहुत साफ नागपुर चुना। और नागपुर पे दीक्षा भूमि पे उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन किया। तो धर्म परिवर्तन करने का एक ही रीज़न था कि अगर हमको भगवान अगर हमें भेदभाव करते हैं तो हम ऐसे भगवान के पास में नहीं जाएंगे। हम उस तथागत बुद्ध की पूजा करेंगे जिसने मानवता सिखाई, अहिंसा सिखाई और भाईचारा सिखाया। और यही ह्यूमन राइट्स बाबा साहब ने अपनी कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा है। कॉन्स्टिट्यूशन में बाबा साहब ने बहुत कुछ लिखा कि जैसे स्त्रियों को अधिकार नहीं मिल रहे, उनके मौलिक अधिकार नहीं मिल रहे, उनके मौलिक अधिकारों के लिए, उनके एजुकेशन के लिए, उनके जॉब्स के लिए, इक्वालिटी, ये सब बाबा साहब